Our next topic is meaning of money and function of money. So, according to Marshall, money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation, regardless of time or place, regardless of कोई भी समये कोई भी जगह वगर कोई इन्वेस्टिगेशन you can use money as a medium of exchange, and that thing is money. What is accepted universally? એવી વસ્તુ જે યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેડ હોય in exchange of goods or service, that is money. So let us start with our functions of money. Okay, the very first function of money is money as a medium of exchange. Okay, you can use money as a medium of exchange. We are continuously talking અબાઉટ ધીસ થિંગ. ઓકે, કે ભાઈ મની મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ તમે યુઝ કરી શકો. તે બાર્ટર સિસ્ટમનું જે એક લિમિટેશન છે, ડબલ કોઇન્સિડન્સ ઓફ વોન્ટ્સ, તેને દૂર કરી નાખે મની. કેવી રીતના? કે જ્યારે મને વીટ જોઈએ ને પેલાને કંઈ બીજી વસ્તુ જોઈએ, હવે એ વસ્તુનો પોઈન્ટ જ નથી ને. જસ્ટ યુ હેવ ટુ પે ધ મની એન્ડ વોટ એવર ગુડ્સ યુ નીડ તે તમને આપી દેશે. બરાબર? તો આ ડબલ કોઇન્સિડન્સ ઓફ વોન્ટ્સ નું જે પ્રોબ્લેમ હતું બાર્ટર સિસ્ટમમાં, તે મનીના આવવાના કારણે એ કમ્પ્લીટલી નીકળી ગયું. એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન સ્પેન્ડ મની ટુ સેટિસ્ફાય હિઝ પ્રેઝન્ટ ડિમાન્ડ્સ ઓફ ગુડ્સ સર્વિસ એન્ડ ઓલ્સો સેવ ધ મની ફોર ફ્યુચર ટુ સેટિસ્ફાય ધ ફ્યુચર નીડ્સ. ઓકે, તો આનાથી બીજી એક વસ્તુ હજુ સોલ્વ થઈ ગઈ. જે સ્ટોર વેલ્યુનું પ્રોબ્લેમ હતું તે બી દૂર થઈ ગયું. તમારું જે અત્યારે પ્રેઝન્ટ ડિમાન્ડ છે ધેટ યુ કેન ફૂલફિલ, અને તમને અગર ફ્યુચરમાં કઈ વસ્તુ જોઈતું છે તો તમે પૈસા બચાવો એન્ડ યુ કેન ફૂલફિલ યોર ફ્યુચર desire or demand also, right? Okay, money as a store of value. Okay, અત્યારે જ આપણે ઉપર વાત કરી. Another function of money is a store of value. If a person produce goods and service in exchange of other goods and service, but saving wealth for future needs of goods and service was difficult before the use of money. મનીના યુઝ પહેલાં એ ડિફિકલ્ટ હતું કે તમે તમારી વેલ્થને શું કહેવાય સ્ટોર કરી શકો લાંબા સમય માટે. કેમ કે જનરલી પહેલાં જે હતું તે ગુડ્સના એક્સચેન્જમાં ગુડ્સ હતું, કાં તો એનિમલ્સ ને એ બધા યુઝ થતા હતા. તો તેને તમે એક પોઈન્ટ, એ લોકો મોર્ટલ હોય, એક પોઈન્ટ પછી દે આર ગોઈંગ ટુ ડાય, તો તમારી વેલ્થ તમે અગાડી નહીં વધારી શકો. બટ વિથ ધ ઇન્વેન્શન ઓફ મની યુ કેન ઇન્ક્રીઝ યોર વેલ્થ. બરાબર? તો જો અહીંયા બી લખેલું છે પાછું, એનિમલ્સ આર મોર્ટલ, લોંગ ટર્મ સેવિંગની થતી હતી. બટ હવે એવું કંઈ બી નથી. અગર તમારા પાસે સરપ્લસ ક્રોપ છે તો તમે એને સારા ગોડાઉનમાં સારી રીતે રાખો અને તમને જ્યારે ઈચ્છા હોય ત્યારે તમે એને વેચી શકો. ઓકે, એ જ પૈસા તમે તમારે જ્યાં શું કરવું ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકો. ઓકે, મની એઝ અ મેઝર ઓફ વેલ્યુ. ઓકે, નાવ હવે પેલું પ્રોબ્લેમ નથી કે ભાઈ 1 કિલો ઘીના સામે કેટલા કિલો રાઈસ કાં તો કેટલા ક્લોથ્સ. ઓકે, નાવ મની આવી ગયેલું છે. તમને જેટલા પણ કિલો ઘી જોઈએ તો તમે એટલા પૈસા ચૂકવી દો, તમને જેટલા ક્લોથ્સ જોઈએ તેટલા પૈસા ચૂકવી દો. એવરીથિંગ હેઝ અ વેલ્યુ. હવે બધી જ કમ્યુનિટીની સभी कम्युनिटी की अभी वैल्यू है और इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम अभी दूर हो गए हैं. ओके, अभी जो नया टॉपिक है हमारा वो, अच्छा ये जो हमने देखा वो थे फंक्शन ऑफ मनी. और ये फंक्शंस बहुत इजी है यार. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू. जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन थे वही अब मनी के फंक्शन हैं. ओके, राइट? मेरे ख्याल से ये कोई जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये बहुत ईजी चैप्टर है ये. ओके, टाइप्स ऑफ मनी डायरेक्टली मैं देख लेता हूँ भाई कौन कितने टाइप्स ऑफ मनी. कमोडिटी मनी मतलब बार्टर सिस्टम वाला मनी. एनिमल्स मनी कि भाई एनिमल्स खरीद लो, एनिमल्स दे दो अगर कोई चीज़ तुमको चाहिए. मेटल मनी, ओके, नाम से ही क्लियर है. पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, बैंकिंग मनी. बैंकिंग मनी मतलब ई मनी जो तुम गूगल पे वगैरह कर लेते हो. ओके, प्लास्टिक मनी का भी इन्वेंशन हो गया है बहुत सारी कंट्री में. न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में प्लास्टिक मनी यूज़ होता है. पेपर मनी मतलब वही तुम्हारे जो नोट्स हैं, करेंसी नोट्स. ओके, यहाँ पे अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन. इन अ सिंपल सेंस इन्फ्लेशन मीन्स अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल. महंगाई, that is inflation. Generally people consider inflation to be rise in the prices of goods and sir, but economics gives a clear meaning of inflation. Okay, generally हम क्या समझते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस ऑफ जो राइज हुआ है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में. बट दिस chapter will give you a clear cut idea about the inflation. So according to Dr. A.P. Lerner, a situation of excess demand over supply of goods is called inflation. मतलब ऐसा सिचुएशन जहाँ पे गुड्स की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन. एक बार और रिपीट कर देता हूँ. सिचुएशन वेयर एक्सेस डिमांड, ज़्यादा डिमांड है और उसके सामने सप्लाई कम है, दैट सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन.
और AC पिगू के हिसाब से इन्फ्लेशन इज सेड टू अकर व्हेन मॉनेटरी इनकम राइज इज फास्टर देन रियल इनकम। ओके, इसके बारे में भी हम लोग आगे नीचे पढ़ने वाले हैं कि भाई व्हाट इज मॉनेटरी इनकम एंड व्हाट इज रियल इनकम। ओके, जेम केन्स ने भी अलग एक स्टेटमेंट दिया, द रियल सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड विद द इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है फिर भी सर्कुलेशन ज़्यादा है मनी का, तो सच सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं इन्फ्लेशन में। तो ये रहे कुछ फैक्टर्स। कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। ओके, प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता है तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन होता है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या प्राइमरी, जो भी सेक्टर्स है सब में कंटिन्यूसली प्राइस राइज हो रहा है। सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है पैसों का। परचेजिंग पावर डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है कंटिन्यूसली, उसके कारण भी इन्फ्लेशन होता है। द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इन पहले तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन्फ्लेशन, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी प्राइस राइज हो रहा है तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन होता है। ओके, व्हेन गवर्नमेंट हैज केप्ट कंट्रोल ओवर द सप्रेस इनकम increase in price level via rules, law and it considered inflation even if there is no price rise, it is called suppressed inflation। गवर्नमेंट ने कंट्रोल रखा है ओके प्राइस लेवल पे, रूल्स, लॉ या कुछ भी सब्सिडी वगैरह, मतलब कुछ भी लॉ बना के कंट्रोल रखा है, तो भले यहाँ पे प्राइस राइज नहीं हुआ है लेकिन तो भी ये भी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जानबूझ के लॉ लगा के ये सारी चीज़ों को रूल के हिसाब से कम किया गया है। ओके, if an economy for shorter period of time there is increase in the price limited goods or service then it is not inflation। अच्छा, if in an economy shorter period of time, अगर ये कोई भी short period of time के लिए रहता है तो उसको inflation हम लोग नहीं बोलते हैं। Okay, when some factors of production are unemployed and there is a price rise then producer gets an incentives to produce more, so economic activity gets a boost and factors get employment, production rises and prices falls। अगर कोई सेक्टर अनएम्प्लॉयड रह जाता है तो प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, फैक्टर्स गेट एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन राइजेस, प्राइसेस फॉल्स। ओके, प्रोडक्शन बढ़ेगा ओके तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई भी एकदम रेगुलर रहेगा। ओके, इन्फ्लेशन का मीनिंग, कोर मीनिंग क्या है कि एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। अब यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी, अभी नेक्स्ट है हमारा, इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू इकोनॉमिक इंक्रीजिंग प्राइस गुड्स सर्विस विल अलाउ अनएम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज, प्रोडक्शन टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर वहाँ पे अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट okay and economy, the increasing price of goods or service will allow employment to increase production, okay, to decrease their price of goods and services। okay, इसके कारण क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और उनकी जो कमोडिटी है उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कॉजेज हैं इन्फ्लेशन के। ओके, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के कॉजेज हैं सब, पहला कॉज है इंक्रीज इन डिमांड। ओके, इंक्रीज इन डिमांड, देखो डिमांड बढ़ेगा और उसके सामने उतना एग्रीगेट सप्लाई नहीं रहेगा तो यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि इसका कोर मीनिंग ही ये है। ओके, अभी इफ देयर इज इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अभी monetary is considered inflation as a purely monetary phenomena। According to them, if there is an increase in money in a state, the individual earn more income because of which the demands of necessity increases। Against the increasing demand, the supply remains steady। देखो, अगर कोई भी, अगर मनी का सप्लाई बढ़ेगा, ओके, कोई भी स्टेट हो या जहाँ पे मनी का सप्लाई बढ़ गया तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। अगर डिमांड एक साथ बहुत सारी बढ़ गई और सामने उतना एग्रीगेट सप्लाई नहीं है तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन हो सकता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने से कैसे इन्फ्लेशन होगा? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए तो वो एक्सपेंडिचर किसके पास से निकलवाएगी? वो पब्लिक के पास से, बराबर। पब्लिक के पास से या मतलब कोई भी ट्रेडर के पास से टैक्स लगाएगी, टैक्स बढ़ा देगी। इन शॉर्ट, अगर टैक्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज होने ही वाला है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ओवर पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। इंडिया हर साल 2% से ग्रो होता है पॉपुलेशन वाइज। ओके, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी डिमांड। ओके, और वो डिमांड पूरा करने के लिए अपने पास इतना सप्लाई नहीं है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो यार सिंपल है, हमने आगे पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड बढ़ने से प्राइस राइज हो गया तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पे है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो रॉ मटेरियल है वही महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली कि भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज हो जाएगा, बराबर। कोई चीज़ पहले 7 रुपये में बन जा रही थी तो वो लोग 10 रुपीज़ में उसको सेल कर दे रहे थे, लेकिन अभी वो जो चीज़ 7 रुपये में बन जा रही थी वही चीज़ बनने में अभी 10 रुपीज़ लग रहे, तो उन लोग 15 रुपीज़ में वो चीज़ को बेचेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। ओके, तो इसके कारण भी इन्फ्लेशन, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। ओके, अदर रीज़न है जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, जो हमने बात की थी कि भाई टैक्सेस में चेंज आता है तो उसके कारण देखो भाई ट्रेडर या जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर वो अपने सर पे तो उठाएंगे नहीं, वो डायरेक्टली पब्लिक के सर पे डाल देंगे। ओके, उनके कमोडिटी का प्राइस राइज कर देंगे। ओके, और जो बेसिक गुड्स है वो तो हमको चाहिए ही, वो भले 5 रुपये का हो या 7 रुपये का हो, हमको परचेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर हमारा चलने वाला नहीं है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट के प्राइस में बढ़ेगा तो यार ऑटोमेटिकली कमोडिटी महंगी होगी, कमोडिटी महंगी होगी तो भाई होगा इन्फ्लेशन, प्राइस राइज हो गया। स्कैरसिटी, यस, अभी कोई चीज़ की कभी कमी हो गई है, अगर कोई भी चीज़ की स्कैरसिटी होगी, ओके, तो उसका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ स्कैर्स है। ओके, फॉर एग्जांपल डायमंड ले लो, डायमंड हमको अबंडेंट में नहीं मिलता, वो स्कैर्स है, इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़, यहाँ पे एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो स्कैर्स हो, मतलब थोड़ा कम पड़ जाए, तो उसका भी ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल बढ़ जाता है। और वो अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, महंगी हो गई है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली कोई भी कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाएगा। तो इसके कारण, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है। ओके, इन्फ्लेशन का मीनिंग है कि भाई प्राइस राइज होना। ओके, एक हिसाब से देखा जाए तो एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई, दैट इज इन्फ्लेशन, बराबर। कि भाई पैसे तो है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बावजूद अगर प्राइस राइज हो रहा है तो दैट इज रियल इन्फ्लेशन। ओके, तो दिस वाज अवर चैप्टर। तो प्लीज़, ये बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर में से आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।